کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، کیا رے وہابی تو بھی کیا کیا بکتا ہے، بکتا ہے بکتا ہے۔ ارے پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا، پڑھ کنز الایمان بریلی والے کا۔ جی ہداک اللہ۔ السلام علیکم۔ جی کون مفتی اقرار بول رہے ہیں؟ کسی اور کو لے کے آئے لائن پہ؟ نہیں، میں تو اکیلا بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اچھا اچھا، آپ اکیلے بات کر رہے ہیں تو ابھی آپ ویست آ رہے تھے، کال کاٹ کے چلے گئے تھے؟ فون آ رہا تھا کسی کا۔ تو بھائی جان فون تو ہمارے پاس بھی آ رہا تھا پر ہم اٹھا نہیں رہے تھے، پر جب آپ کال کٹ کر کے چلے گئے تب ہم نے کسی کا فون اٹھایا۔ اچھا جی بولیے۔ جی پہلے سلام کا جواب تو دے دو۔ دے دیا نا۔ ہداک اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت آپ کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ کیوں اب تک کہیں کی ہدایت پہ ہم؟ آپ ہدایت پہ نہیں بلکہ گمراہی پر ہیں۔ کون سے مندر میں پوجا کرنے جا رہے ہیں ہم؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھنے آتے تھے وہ کون سے مندر میں جاتے تھے جن کو بھگایا تھا رسول اللہ نے؟ چلو بھاگو منافقو، ہماری مسجد کو پاک کرو، چلو نکلو، پلا اٹھ منافق، چل بھاگ، تو منافق ہے۔ اچھا تو کون سے مندر میں پوجا کرنے جاتے تھے؟ کون تھے وہ؟ بہرحال آپ مفتی ہیں کہ مولوی ہیں کہ مفکر ہیں کہ مجدد ہیں کہ کون ہیں آپ اپنی جماعت کے؟ آپ کی جماعت کا نام کیا ہے اور آپ کے اکابر کون ہیں؟ ذرا یہ بتائیں۔ کیوں بات کرنی ہے تو بات کیجیے، ورنہ فالتو باتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ آپ عبادت کس کی کرتے ہیں؟ میرے پاس فالتو باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو بات میرے سوال کیجیے، ٹاپک چھیڑیے۔ آپ کو میری جس آڈیو پر جس ویڈیو پر اعتراض تھا کہ مجھ سے بات کر کے دکھائے، تو الحمدللہ نور حسن آپ سے بھی بات کرے گا، آپ کے بڑے بڑے مفتیوں سے بھی بات کرے گا۔ اگر آپ سے بات نہ ہو سکے تو آپ اپنے کسی بڑے سے بڑے مفتی کو دیکھ کے لے کے آئے جس کی منہ پر چراغ جلتا ہو۔ ارے پہلے میرے سے نمٹ لو تم۔ ٹھیک ہے تو بتائیے میرے کس آڈیو پر آپ کو اعتراض تھا؟ آپ کس کی عبادت کرتے ہو؟ میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے؟ جی عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ ہاں، ادب اللہ کے بندوں کا بھی ہوتا ہے، جی اپنے ماں باپ کا ہوتا ہے، اپنے بزرگوں کا ہوتا ہے، اپنے بڑوں کا ہوتا ہے۔ جی ادب میں اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ یو آر رائٹ، انڈرسٹینڈ۔ مگر تم بے ادب لوگ ہو، بے ادب ٹولہ ہو۔ تھانوی جی نے اپنی کتاب میں لکھ دیا ہے، حضرت وہابی اس کو کہتے ہیں جو بے ادب ہوتا ہے، اور سنی اس کو کہتے ہیں۔ بعد میں کیجیے بھائی، بعد میں کیجیے، پہلے بات کو پورا سن لو۔ جی بیچ میں بولنے والا اچھا نہیں لگتا یار مجھے۔ جی جی میں بول بھی نہیں رہا، سننا ہوا۔ ہاں، اور ہم سنی حنفی بریلویوں کو انہوں نے بدعتی کہا مگر با ادب کہا، کیا بات ہے؟ ابھی تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا بدعتی کہتے کس کو ہے؟ چلیے مجھے نہیں پتا ہے، پر آپ یہ بتائیے آپ کا جو مسلک ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کے جو اکابرین ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ آپ اپنی جماعت کا نام بتا دیجیے، اپنے جو ہے اکابرین کا نام بتا دیجیے، بات ختم۔ اکابرین کی عبادت کر کے جنت میں چل جاؤ گے یا اللہ کی عبادت کر کے جنت میں جاؤ گے؟ اکابرین کے ذریعے سے آپ ایمان لائے ہو یا خود ایمان لائے ہو؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ پہلے بتاؤ اپنے اکابرین کے ذریعے سے آپ مذہب اسلام میں ہو یا پہلے تمہارے ماں باپ ہندو تھے تو تم خود مسلمان ہوئے ہو؟ کلمہ پڑھا ہے کیا؟ پھر وہی بات، آپ نے اپنا آپ کے اندر ہمت ہے کہ نہیں؟ یہ لایانی باتیں کرنا بند کر نور حسن کے سامنے۔ کسی بھی ٹاپک پر بات کرو گے نا تو نور حسن سے بات نہیں کر پاؤ گے۔ میری بات سن، یہ سن کرنا بند کر، ٹھیک ہے؟ جیسے تو بولے گا نا ویسے میں بھی بولنا جانتا ہوں۔ چلیے خیر، بکواس کرنا بند کر، عزت کے دائرے میں رہ کے بات کر، حضرت ٹھیک ہے؟ ادب کا دامن نہ چھوڑ۔ اعلیٰ حضرت جناب پھر وہ بکواس کر رہا ہے اعلیٰ حضرت۔ ارے اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہیں جو کہ الحمدللہ اپنے وقت سے لے کر آج تک اعلیٰ ہی ہیں، وہ جن کا نام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، زبان چھیدنے سنیوں کی جان، بریلی کا پٹھان، امام احمد رضا خان۔ جی بے شک۔ زبان چھیدنے کی زیادہ عادت ہے کیا؟ بہرحال بات کرنی ہے تو اپنا جو ہے ٹاپک بتائیے، اپنا مسلک بتائیے، اپنے اکابرین کا نام بتائیے، اس کے آگے میں پہلے بات نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ میری بات سنیے،
بعد में सुनाइए, पहले अपने मसलक का नाम बताइए, अपने काबिरीन का नाम बताइए। अरे मसलक को लेकर जन्नत में पहुंच जाओगे क्या तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, हमारा वो मसलक है जो जन्नती है। ओए है क्या कह दिया। हाँ, ये ओए होए लौंडियों की तरह बाद में करना, ठीक है? अच्छा, जैसे जीजा जी के सामने लौंडिये करती है ना, साली है, अरे काम तो ये की बात करना बंद करिए, करो। काम की बात कीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, काम की बात करो। आपने मेरे से ये कहा है कि आपके अकाबिर कौन है, आपका मसलक क्या है। आप मेरे से ये पूछिए कि आप किसकी इबादत करते हैं, किसको मानते हैं। फिर वही बात, मेरे नबी ने जिन लोगों को मस्जिद से निकाला था, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने आए थे कि मंदिर में पूजा करने आए थे? आप जो ना आपने, अरे तुम हो कौन, पहले अपनी औकात तो बताओ, कितने पढ़े लिखे लोग हो? आपने ऐसा करो, अपने मुफ्ती को लेकर आओ किसी को, ठीक है? तुम्हारे बस की बात नहीं है। आपसे निपटने के लिए मैं ही काफी हूँ हजरत। अभी तक तो मुंह से आवाज निकला नहीं है कि मेरा मसलक ये है, मेरे जमात के जो मेरे अकाबिर हैं वो ये हैं। जी, अभी तक बताया है तुमने? मैं उलमाए हक, उलमाए अहल देवबंद, अहल सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला वो हनफी देवबंदी। अच्छा अच्छा, आपकी तालीम क्या है? मुफ्ती हैं, मुफक्किर हैं, मुहद्दिस हैं, मुजद्दिद हैं? क्यों, आपसे बात करने के लिए मुफ्ती होना फर्ज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आम इंसान होना भी कोई जरूरी है, मतलब आम इंसान से भी मैं बात करता हूँ। अगर आपने इस्लाह की गर्ज कसम खा के बता दीजिए आपकी तालीम कितनी है, क्योंकि आपके बड़े बड़े मुफ्ती आके अरबी सौम का तालिब इल्म बताते हैं, तीसरी जमात का, फिर जब बाद में मैं कसम खिलाता हूँ तो कहते नहीं मैं आलिम हूँ। अच्छा, तो आप भी बता दीजिए, आप आलिम हैं या अरबी सौम के तालिब इल्म है? आपने मेरे पास किस गर्ज से फोन किया है? कॉल आपने किया है जनाब, मैंने कॉल किया था तो तुमने उठाया नहीं था, फिर तुमने कॉल किया, काट के भाग गए, ठीक है? अब तुमने फिर कॉल किया है तो मैंने कॉल नहीं किया है, कॉल तुमने किया है। तुम बताओ किस गर्ज से कॉल किया है? आपने कहा हदाकल्लाह, अल्लाह किस गर्ज से कॉल किया है? हदाकल्लाह किस गर्ज से? सुनो मेरी बात, सलाम के जवाब में आपने कहा हदाकल्लाह, अल्लाह आपको हिदायत देते हैं कि ईमान की? हाँ हाँ, मैंने आपके लिए दुआ की है, बुरा किया? नहीं, ईमान की दावत दी है क्या आपने? मैंने आपको दुआ दी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको नेक हिदायत अता फरमाए। नहीं तो ये आपको गाली लगी है? नहीं, अरे गाली बकता तो आपको इतना बुरा नहीं लगता जितना इस पे बुरा लगा के मैंने आपको दुआ दे दी। हजरत आप गाली दे भी नहीं सकता, आपका दर्जा बड़ा है, आलिम है आप। क्या चीज? आप गाली दे भी नहीं सकता, आपका दर्जा बड़ा है, आलिम है। अरे भैया, मैं एक आम इंसान हूँ, मेरा दर्जा बड़ा नहीं है, ठीक है? मैं एक आम इंसान हूँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं, चलिए, मगर देवबंदियों की बैंड बजाता हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात, बड़ी खुशी की बात है जी। तो आप मुझे कोई आलिम उलिम ना समझो जनाब, ठीक है? सलाम के जवाब में आप, क्योंकि जिस तरह मुझसे सामने वाला बात करता है ना, मैं हर अंदाज में जानता हूँ बात करना। इस बात का जवाब दीजिए, हदाकल्लाह का मतलब क्या है? किस हिसाब से आपने मुझे हदाकल्लाह कहा है? मैंने हदाकल्लाह इसलिए कहा है कि तुम काफिरों को मुसलमान मानते हो। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। आप फतवा भी लगाते हैं, अल्लाह की इबादत करते। अरे भाई, तुम काफिरों को मुसलमान मानते हो कि नहीं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वालों पर आप फतवा भी लगाते हैं। अरे ये सब बातें बाद में छोड़ना, ठीक है? ये सब बातें, ये सब लन तरानी ना बाद में सुनाना, पहले हाँ और ना में जवाब दो। ये मुझसे पूछो कि तुमने जो काफिर कहा है, हमने किस काफिर को मुसलमान माना? पहले मुझसे सवाल करो यार, अपनी लंतरानियां बाद में हाँकना, ठीक है? बात भी नहीं करने आती कि बात कैसे करनी है। मैंने जब आपके ऊपर एक इल्जाम लगा दिया कि तुम काफिरों को मुसलमान समझते हो, तो अब तुम्हारा कहना ये था कि हम कौन से काफिर को मुसलमान समझते हैं, ये है तुम्हारा जवाब। नहीं, आपने मुझे क्या समझ करके बात की है? मुझसे आप क्या? मैंने थोड़ी बात की है, तुमने मुझे चैलेंज किया सोशल मीडिया पे कि तू मुझसे बात करके दिखा। तुमने कहा ना, दावा किया ना कि मुझसे बात करके दिखा, तो अल्हम्दुलिल्लाह तुमने चैलेंज किया, मैंने तुम्हारा नंबर लिया यूट्यूब से। मुझे मुसलमान समझकर बात कर रहे हैं क्या? नहीं, और ना मैं तुम्हें मुसलमान समझ रहा हूँ जी, और ना मैं तुम्हें काफिर कह रहा हूँ। मैंने अभी जब तुम्हें कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो आप कह रहे हैं। मैंने तो, अरे सुनो के जवाब में, अरे सुनो ना, सलाम मैंने तुमको कहा हदा कल्ला कह रहे हैं ना? हाँ, हदा कल्ला कह रहा हूँ। क्या है? यानी अभी तुम रास्ते से भटके हुए हो, गुमराह लोग हो तुम, और अभी बात मेरी हुई नहीं है, बात की शुरुआत है,
तो मुझे बात करके पता चल जाएगा कि आप कौन हैं। आप मुझे सिर्फ सलाम का जवाब दे दें। सलाम के मुसलमान घटिया लोगों के सलाम का जवाब नहीं देता मैं, ठीक है? जो थानवी काफिर को मुसलमान कहते हैं, मैं ऐसे लोगों के सलाम का जवाब नहीं देता। अब ये पता नहीं थानवी काफिर को तुम जानबूझकर काफिर समझते हो या अनजाने में उसे मुसलमान जानबूझ के समझते हो या अनजाने में। रसूलुल्लाह पढ़ा है, अल्लाह रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ा है, मैं कलिमा पढ़ करके मुसलमान हुआ हूँ। बस यही 2.5 अक्षर याद है के नाते आपको मुसलमान समझते हुए आपको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने इसके जवाब में मैंने आपको कहा था वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, और सलाम के जवाब में हदाकल्लाह कहा जाता है काफिर को। यानी जब तो यानी जब अच्छा ये बताओ हेलो जी, तुम आलिम हो या नहीं? पहले खुदा की कसम खा के ये बता दो, इंशाअल्लाह मैं सलाम पर ही तुमसे बहस करूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आलिम हूँ, दारुल अच्छा, से फारिग हूँ। मुफ्ती हैं दारुल उलूम देवबंद से? जी अच्छा, दारुल उलूम देवबंद से आप फारिग हैं। मुफ्तियत पढ़ी है आपने या मौलवियत की है आपने? अभी जी आपने इफ्ताह कर लिया है? नहीं, इफ्ता नहीं किया मैंने, मौलवियत पढ़ी है सिर्फ। मौलवियत पढ़ी है? पूरी 9 साल की पढ़ी है कि 4-5 साल की? नहीं, पूरा 8 साल की पढ़ी, 8 साल की पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल की पढ़ी है, चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो आप आलिम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, प्यार मोहब्बत से अगर बात करेंगे बड़ा मजा आएगा। जी, बड़े खुशी की बात। मैं आपकी बात को सुनूंगा, आप मेरी बात को सुने, और इसी को मैं पसंद करता हूँ। जी, तो ये बताएं भाईजान कि किसी काफिर को मुसलमान जानना, काफिर को उसके कुफ्र को जानकर जी, उसको काफिर ना कहना, मुसलमान ही कहना, मुसलमान ही समझना, जी, ये खुद एक कुफ्र है या नहीं? क्या आप जानते हैं मैं काफिर हूँ या मुसलमान हूँ? मैंने आपको कहा कि आप काफिर हो या मुसलमान हो? आपने जब मैं एक मिनट, आप आलिम हो यार, क्या पढ़े हो, क्या समझाते हैं तुम्हारे लोग? इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपने हदाकर किस चीज की फिर वही बात, इसी का जवाब दूंगा इंशाल्लाह, टेंशन मत लीजिए। अच्छा ये बताइए, किसी मुसलमान को किसी दूसरे मुसलमान ने, मैं आपको बात मौलवी है तो मौलवी होके मौलवी का जो है तरीका सीखें। मैं आपसे सवाल करता हूँ, अगर मैं आपको सलाम करूँ तो आप सलाम का जवाब? मैं किसी बदमज़हब बदअकीदे देवबंदी वहाबी के सलाम का जवाब ही नहीं देता, बात खत्म हो गई। बस तो ठीक है, बात करने की क्या जरूरत है? अगर आपको दावत तो जाइए, आपने चैलेंज किया था मुझे यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर तुमने चैलेंज किया, मैंने तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इसीलिए मैंने तुम्हें कई दिन पहले कॉल किया था। तुमने कहा कि मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ, काम में हूँ। ठीक है, भाग गए उस दिन भी। आपने ये कहा है कि आप अपने काबिर को क्या समझते हैं? आपका काबिर कौन है? मैं थानवी को काफिर समझता हूँ। अब तुम बताओ तुम क्या समझते हो? या तो मुझसे दलील मांगो काफिर होने की, ठीक है? सुनो मेरी बात। न मैं किसी को काफिर गर्दानता हूँ और न मैं किसी को काफिर समझता हूँ। यहाँ तक कि हम जो है आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी को भी अपने अकाबिर में शुमार करते हैं। आप हमारे अकाबिर को चाहे जितनी गालियां दें, हम आपको पलट करके उसका बिल्कुल जवाब नहीं देंगे। और हम आपके अकाबिर आला हजरत इमाम अहमद रजा खान साहब बरेलवी को अपनी आंखों पर बिठाते हैं, यानी हम उनकी नाकदरी नहीं कर सकते। आप जितनी चाहे हमारे काबिर की नाकदरी कीजिए और उनके फोटो पर कुत्तों की तस्वीरें बना करके स्टेटस पर उस पर यूट्यूब पर छोड़िए। आप इसका अज्र हम नहीं दे सकते, आपको अल्लाह ही दे सकता है मेरे भाई। सर आप बड़े भोले बन के आए हैं मेरे सामने, और आपके जैसे भोले जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आते रहते हैं, ठीक है? बहुत आते हैं आपके जैसे भोले। आप मुझे भोला समझ लीजिए, ये शंकर समझ लीजिए। अरे भैया कहाँ ले गए तुम? मैंने भोला शंकर वाला नहीं कहा है। क्योंकि आप हदाकल्ला कह रहे हैं ना, इसीलिए आप भोला भी कह रहे हैं। चलिए, शंकर भगवान तो आपके भगवान है ही, जब आपने मान ही लिया है तो वो तो है ही, क्योंकि मौलवी इलियास कासमी मौलवी एक आलिम है ना, आप एक आलिम है ना। मैं आलिम नहीं हूँ भाई, मैंने आपको बताया ना कि मैं आलिम नहीं। आपकी नजर में उलमाए देवबंद सब काफिर हैं? मैंने सबका नाम लिया यार, जो मैं नहीं कहता हूँ अपनी तरफ से क्यों कहते हो तुम? ये बताओ, झूठा इल्जाम किसी पर जो है जबरदस्ती डालते? मैं एक आलिम हूँ, तो क्या आप मुझे हदाकल्ला कह सकते हैं? फिर वही बात, इसका जवाब। अरे यार तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है जरी सी भी मुझसे बात करने की। मैंने तुमसे ये कहा कि किसी मुसलमान को दूसरे एक मुसलमान ने काफिर कह दिया और वो हकीकत में काफिर ना था, तो वो कुफ्र उसके ऊपर पलट के आएगा या नहीं?
का जवाब दीजिए कि पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। नमाज करते मौलवी होके यार मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, जमीन के रसूलुल्लाह को नबी जमीन मानता खिसक गई हो, क्या आपके पैरों की? उस आदमी को काफिर कह सकते हैं आपके मसलक में? क्या चीज? क्या आपके मसलक में उस आदमी को जो अल्लाह की 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, इबादत करता हो, रसूलुल्लाह को नबी मानता हो, क्या आपके मसलक में उसको काफिर कहते हैं? अच्छा ये बताइए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पाक में जर्रा बराबर तौहीद हजरत, करने इसका वाला, जवाब दे दीजिए पहले। चाहे वो 5 वक्ता की नमाज पढ़ता हो या 50 वक्ता की नमाज पढ़ता हो, इसका जवाब मैं कह रहा हूँ 50 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ 50 वक्त की वो नमाज पढ़ता है, ठीक है, ज़कात भी करता है, खैरात भी करता है, लोगों की मदद भी करता है, हज भी उसने बहुत कर लिए हैं, ठीक है, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखियां करता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अरे मौलवी साहब, बात करने का तरीका ये नहीं होता, पहले बात को सुन लो। पहले अगर आप सवाल करें, अगर मैं सवाल करूं तो फिर आप उसका जवाब दीजिए, बात करने का तरीका ये है। चलिए, आपने कहा कि जो नमाज पढ़ता हो 5 वक्ता की, तो क्या उसे काफिर कह सकते हैं? नहीं, अब पूरी बात बोलिए, क्या कहा मैंने? बोलो, दोबारा बोलो। जो अल्लाह की इबादत करता हो, रसूलुल्लाह तो ये नमाज इबादत नहीं है? और 5 वक्त नमाज इबादत नहीं है? कौन कह रहा नहीं है? तो फिर मैंने इबादत का कह तो दिया, नमाज का कह तो दिया जी, तो क्या वो काफिर है आपकी नजर, आपके मसलक में? देखिए, मैं अब बता दूं कि काफिर कौन है, चाहे वो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो या 50 वक्त की, जी ठीक, चाहे वो 1 साल के रोजे रखता हो या 1 महीने के, जी चाहे उसने अपनी जिंदगी में 1 हज किया हो जी या 1 लाख, जी ठीक है। अगर मेरे आका हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पाक में जर्रा बराबर भी तौहीन उसने की है, जी जर्रा बराबर, और नमाज 5 वक्त का पढ़ता है, जी, तो आपकी नजर में वो इंसान मुसलमान ही है या काफिर है? हमारी नजर में काफिर है हजरत। क्या कह रहे हो यार, तुम्हारी नजर में काफिर है? जी भाई सोच समझ के बोलो यार। बिल्कुल सोच समझ के बात कर रहा हूँ। सही में? जी बाद में फिसल मत जाना। जी जी बिल्कुल सही में? जी, जहाँ आप लेकर जिस टॉपिक पर आप लेकर के जा रहे हैं ना, हाँ जिस टॉपिक पर आप लेकर के जा रहे हैं, जहाँ आपका दिमाग घूम रहा है ना, हाँ, वो आपके अकाबिर की गलतियाँ की हुई है किताबों के अंदर। अच्छा, मैंने कौन सी जगह अपना दिमाग लगाया, जरा बताइएगा। जहाँ आप ले जाना चाह रहे हैं, हम तो मुझे बता दो दीजिए कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ मैं आपको। आप इजहार कीजिए उसका। अरे यार, मैं कैसे इजहार करूं, मैंने अभी तो कुछ सोचा ही नहीं, खाली अभी तो मैंने यही कहा है कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जर्रा बराबर भी तौहीन करे वो मुसलमान है या काफिर। आपने सोच ली, आपने कह दिया कि जहां आप लेके जा रहे हैं, तो आपने कैसे समझ लिया मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ? चलिए बताइए, जवाब दीजिए, कहाँ लेके जा रहा हूँ मैं आपको? आप ही बता दे, खैर मुझे तो अरे नहीं है। भाई, आपने जो ये गुमान लगाया है, ये कैसे लगाया है, इसका जवाब दीजिए आप। वो आप हजरात इल्जाम देते हैं ना कि उन्होंने भाई इल्जाम तो आपने दिया ना कि आप जहाँ लेके जा रहे हैं मैं जानता हूँ, जान रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, तो क्या समझ रहे हैं और मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए आप। आप जो झूठा इल्जाम देते हैं कि अच्छा, मैंने क्या झूठा इल्जाम दिया? गंगोही साहब ने जो है उनकी शान में गुस्ताखी की। कौन सी? आप बोलते हो ना। मैं क्या बोलता हूँ? खाली एक ही गुस्ताखी थोड़ी है यार। आप ही नहीं, आपके मसलक वाले बोलते हैं हजरत। अच्छा, एक ही गुस्ताखी थोड़ी है उलमाए देवबंद की। मैं एक एक करके इतनी गुस्ताखी गिनवाऊंगा, इतनी गुस्ताखी गिनवाऊंगा कि दुनिया देवबंदियत के बड़े बड़े मुफ्तियों के कानों में ना मिर्ची सुधार करने की कोशिश की है। मिर्ची लग जाएगी, मिर्ची, आग लग जाएगी, आग। आपने सुधार कर, आप सुनो मेरी बात जी, मैं सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर आप सुधार की कोशिश में है नहीं। मिर्ची एक होता है सुधार करना, इस्लाह की गरज से बात करना, और एक जी मैं इस्लाह की गरज से बात कर रहा हूँ आपसे। तो आप जो है ना, आपने जो यूट्यूब पे वो फोटो वगैरह बना करके डाले हैं, वो मिर्ची लगाने वाले हैं, इस्लाह वाले नहीं है वे। अच्छा, ये जो मुफ्ती मुझे गाली बकते हैं, ये अच्छा करते हैं? कौन मुफ्ती लोग, देवबंद के मुफ्ती होके, आलिम होके गाली बकना और आलिम होके झूठ बोलना कि मैं तालिब इल्म हूँ और मैं अरबी कौम का तालिब इल्म हूँ और मेरी कोई पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई है, मैं बरेलवी हूँ, फिर कहते हैं मैं देवबंदी हूँ। ये ऐसा धोखा देना अच्छी बात है? ये आलिमों का कमाल है। हजरत आलिमों का कमाल ये है, वाह क्या बात है, आलिमों का कमाल है। चलो सुनाते रहो, मैं सुनना। यही सिखाया जाता ना आपके दारुल देवबंद में कि मक्कारी करो, तकैया करो, मकरो फरेब करो, मुनाफिकत करो, मुनाफिकत के साथ लोगों से मिलो, दिल में कुछ जबान पे कुछ, यही सब सिखाया जाता है दारुल देवबंद में।
ہمارے یہاں اللہ کی عبادت کرنا سکھایا جاتا ہے, اللہ کو سجدہ کرنا. اللہ کی عبادت کرنے والے کو اسے یاد کرو کہ اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو 6 کروڑ برس اس نے عبادت کی, اس کی عبادت کو اس کے منہ پہ مار دیا گیا, ٹھیک ہے, لعنتی بنا دیا گیا, لعنت کا توق اس کے گلے میں ڈال دیا گیا, ہمارے ملک میں جو اور در در بھٹک رہا ہے, مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے, مسلمانوں کو بہکا رہا ہے, انسان کا مسلمان کا کھلا ہوا دشمن ہے, ٹھیک ہے. اس نمازی کو یاد کرو یار پہلے, ٹھیک ہے, یہ نماز کا دھوکہ بعد میں دینا, کسی اور کو دینا, ہمارے کسی سیدھے سادھے بولے والے کو. یہ نور حسن کے سامنے یہ دھوکہ نہیں چلے گا, سمجھے بھائی جان. مفتی اقرار صاحب, او مفتی اقرار صاحب, مفتی اقرار صاحب, ہلو مفتی اقرار صاحب, ہلو. ارے بھگ گئے کیا؟ لگتا ہے ہاں بھگ گئے. بتائیے نماز کا یہاں دھوکہ دے رہے ہیں, یہاں بھی آ کے نماز کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو. میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر توہین کرنے والا انسان کافر ہے یا مسلمان؟ تو کہہ رہے کافر ہے, پھر کہہ رہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں کہاں لے کے جا رہے ہو. ارے بھائی بتانا کہاں لے کے جا رہا ہوں, وہی تو میں تیری بات سے ثابت کر دوں گا. بولا بھی نہیں کہ یہ ہمارے سیدھے سادھے بھولے بھالے مسلمانوں کو اتنا بہکاتے ہیں, اور اس قدر سے بہکاتے ہیں کہ سیدھا انسان جو ہوتا ہے نا بھولا بیچارہ ایسے بہک جاتا ہے کہ یار یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں یار, بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں, مگر وہ ان کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا. شیطان چھپا ہے. چلو ٹھیک ہے پھر حضرت ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے گا, ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ بعد میں بات کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے, السلام علیکم. حضرت جی چلیے, وعلیکم السلام. کافی خوشی ہوئی. ماشاء اللہ حضرت, آپ کی تو بات ہی الگ ہے. اللہ آپ کو شکریہ, جزاک اللہ حضرت. بس آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے مجھے, آپ دعا فرماتے رہیں. دعا کرتے رہیے انشاءاللہ. جی میرے دعا کرتے رہیے ہمارے لیے. جی بالکل انشاءاللہ. بعد میں انشاءاللہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے حضرت, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.